So good morning, student. This is our. Okay, wait. Can you see the screen? No, ma'am. No, it's okay. No, ma'am. Okay, I'm sharing. Now it is visible. Okay, thank you. Okay, ma'am. Okay, let us start. Okay. In the previous lecture, what we did? Any idea? Last lecture, what we were learning? Hmm? Field capacity. Field capacity, right? That is the soil moisture plant relationship. Okay, soil moisture plant relationship. Now today we will learn crop requirement. Okay, crop water requirement. That means what? How much water is to be applied to the crop, that we will learn today. Okay, and there are different terminologies, whether we are calculating in terms of the area, what is the area that is to be irrigated. Okay, that is one term. Another is term is that how much depth of water is to be applied, that is another term. Okay, and the third most important term is for how much period, for how much period we have to irrigate the land, so that the from its sowing period to its harvesting period. Okay, from the time starts from sowing to harvesting. So what is the amount of the water or the depth of the water that we are applying, volume of the water or discharge, okay, that we are applying from the canal. Then what is the area that is to be irrigated, that we will learn in this topic, okay, in this lecture. So there are three terms are there: delta, duty and base. Depending upon this only, whatever I am talking, whether it is about the depth, area, period, okay, whatever, all these terms come under these three terminology only. Okay, now we will learn what do you understand by each of this terminology. Okay, so today's topic will be, first we will learn about the crop period. What do you understand by the crop period? Base period. There are other period also, but these two are very important in every numericals. Okay, in every numericals they will either give you some base period or some crop period value. Then we have to understand what does it mean. Okay, and another topic is what? Duty and delta. We will discuss it. Relationship between these three: base period, duty and delta. It is very important. Okay, the derivation as well as the numericals that will be coming in the GATE exam or in your semester exam. Okay, mainly comes from this one only, this relationship between delta, duty and base period. Okay, we have to derive one equation. Depending upon this, we will try to solve one small numerical. Okay, then the next topic we will go is the command area. Area means here what? The area to be irrigated by a canal. Okay, that is the command area. Now based on this command area, we will solve one numerical for clearing our concept. Okay, so these are the topic that we will learn in this particular lecture, lecture 22. Now see, as I said, this what we are dealing with the irrigation engineering, right? Irrigation engineering means what? We are applying artificially, we are applying water to the field for the crop cultivation. Now cultivation starts from when we sow the seed, okay, till it is harvested. Okay, so throughout this period we need to apply certain depth or certain volume of water to the field. Okay, so that is the crop water requirement, and it varies from interval to interval. Okay, it is not like that constant level of water must be applied to the field throughout its crop period, not like that. Okay, so we have to go through this crop water requirement. Okay, from sowing till harvesting. Say for example, this is your crop. Okay, here we have sowed the seed. Suppose this is a paddy. Okay, we have sowed the seed. Then what happens? Slowly it is growing from starting from sowing of the seed till its
harvesting, okay, till its harvesting, that period is your crop period. ठीक है, जब से तुम मतलब माटी में मिट्टी के अंदर सीड को बोए हो टिल इट्स हार्वेस्टिंग, जब तक तुम वो काट के मतलब निकाल नहीं देते हो, राइट, मतलब हार्वेस्ट नहीं कर देते हो, दैट पीरियड इज द क्रॉप पीरियड. ओके, देन व्हाट इज बेस पीरियड? बेस पीरियड है तुम्हारा, देखो व्हेन वी सो द सीड, हम क्या उससे पहले पानी डालते हैं? हम मतलब प्लांट को कल्टीवेट करने से पहले पानी डालते हैं. आफ्टर सोइंग द सीड वी आर अप्लाइंग सर्टेन डेप्थ ऑफ वाटर सो दैट इट विल कल्टीवेट, इसके हेल्प करेगा. मैम, हाँ यस मैम অর্পণ জয়েন করতে যাচ্ছে, ওকে অ্যাকসেপ্ট করুন তো, অর্পণ পাল. अच्छा अच्छा ओके. So crop period क्या है? When you have sowed the seed till its harvesting period, total period is the crop period. Okay. Now what is base period? When you sow the seed, you will, after sowing the seed, you will apply water. Okay. Till कितना दिन तक तुम पानी डालते रहोगे? Before harvesting. Okay. So ये जो टोटल पीरियड है एकदम सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग, दैट इज द क्रॉप पीरियड. देन बेस पीरियड इज व्हाट? बेस पीरियड इज द फर्स्ट वाटरिंग, मतलब आफ्टर सोइंग फर्स्ट वाटरिंग जो कर रहे हैं टू द लास्ट वाटरिंग. लास्ट वाटरिंग कब करते हैं? बिफोर हार्वेस्टिंग, मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम में नहीं करते, हार्वेस्ट करने के पहले हम पानी डाल देते हैं, राइट, कुछ पीरियड तक. सो दैट इज द बेस पीरियड. सो दिस इज द डिफरेंस. So what is the relationship then? Which one will be greater, crop period or base period? क्या लग रहा है कि कौन सा? crop period टे बेशी. Yes, crop period will be greater, right? Because crop period हम बोले थे देखो एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ठीक है, टाइम. Whereas after sowing first watering जब दे रहे हैं till हम last watering कब दे रहे हैं? Before harvesting. So यहाँ से लेकर यहाँ तक is your base period. So base period will be what? It will be lesser than the crop period. Okay, so crop period is greater than the base period. तो ये है mainly difference. There are some other types of watering also. ठीक है, उसको भी बोलते हैं बहुत सारे, जैसे पैलियो, कोर वाटरिंग, पैलियो वाटरिंग, ये सब है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे. ओके, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट नेसेसरी कि वाटरिंग सिर्फ आफ्टर सोइंग ही हम पानी डालेंगे, मतलब सो करने के बाद ही हम पानी नहीं डालते. बिफोर सोइंग ऑल्सो वी हैव टू मॉइस्ट दिस सॉइल. अगर ये बहुत ड्राई कंडीशन में होगा तो हमको पानी छिड़कना पड़ेगा इसके लिए, राइट. सो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज अनदर काइंड. ठीक है, और दूसरा क्या है कि इनिशियल वाटरिंग, जब हम लोग थ्रू आउट द बेस, ड्यूरिंग द बेस पीरियड, जब ये प्लांट मतलब बच्चा रहता है, जब ये प्लांट इज इन इनिशियल कंडीशन, मतलब कि छोटा जब रहता है, तब हम जो वाटरिंग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वी विल लर्न अबाउट इट. सो क्लियर ये वाला क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड, एवरीवन? হ্যাঁ ম্যাম. Yes, ma'am. ওকে Yes, ম্যাম ma'am. বলছি অরিন্দম একটু জয়েন করতে চাইছি. ওকে 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 হয়েছে? আর কেউ আছে? ওকে ওয়েট, तो स्टार्ट कंटिन्यू. देखो नाउ ये हो गया तुम्हारा बेस पीरियड. ओके, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप के लिए हमको पहले ये तीनों चीज क्या है वो जानना था. सो बेस पीरियड वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द बेस पीरियड. ठीक है, अब बेस पीरियड क्या है? बेस पीरियड इज द पीरियड ऑफ वाटरिंग. टोटल पीरियड ऑफ वाटरिंग को हम बेस पीरियड भी बोलते हैं, मतलब कितना दिन तक हमको पानी डालते रहना है. ओके, दैट इज बेस पीरियड. अब है तुम्हारा ड्यूटी और डेल्टा. क्या है ड्यूटी? इज व्हाट? डेल्टा इज व्हाट? एज आई सेड दैट देयर विल बी सम डेप्थ ऑफ वाटर. ठीक है, और दूसरा है देयर विल बी सम एरिया ऑफ द लैंड दैट इज टू बी इरिगेटेड. जो डेप्थ हम बोल रहे हैं दैट इज योर डेल्टा. ओके, so this is the depth of the water required to raise a crop. This is the delta. Okay, जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे that will be in meter. Okay, जो फॉर्मूला we will derive that will be in meter. डेल्टा का यूनिट होना चाहिए मीटर में. Now डेल्टा यहाँ पे देखो, डेल्टा कौन सा है? क्या है? So this is the delta. ये जो डेप्थ है देखो,
ओके ये जो 100 mm है, यहाँ पे फिर 20 to 50 mm है, सो दिस आर दी डेल्टा। ओके, इसको बोलते हैं डेल्टा। नाउ व्हाट इज तुम्हारा ड्यूटी? ओके, नाउ ड्यूटी इज व्हाट, अगर अगर हम, ये कैनल है, ठीक है, सपोज दिस इज द कैनल, हम लोग पानी कहाँ से लेते हैं? कैनल से लेकर आते हैं, राइट? कैनल से फिर कहाँ पे जाता है? फील्ड में जाता है, ठीक है। तो अगर ये कैनल से डिस्चार्ज सपोज 1 क्यूमेक है, ओके, रिमेंबर 1 क्यूमेक इज व्हाट, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूमेक, मीटर क्यूब पर सेकेंड को क्यूमेक भी बोल सकते हैं। तो ये कैनल से अगर हम 1 क्यूमेक का पानी डिस्चार्ज निकाल के इस एरिया को अगर हम इरिगेट करेंगे, ठीक है, सो दैट एरिया इज द ड्यूटी, ठीक है। मतलब कि द एरिया ऑफ द लैंड विच इज इरिगेटेड बाय 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड डिस्चार्ज, ठीक है। मतलब ये डिस्चार्ज से जितना पानी बह के कैनल से फील्ड में आएगा, उससे जितना ये एरिया इरिगेट होगा, दैट इज ड्यूटी। ओके, रिमेंबर इट्स यूनिट इज इन हेक्टेयर। ओके, हेक्टेयर में है इसका यूनिट। क्लियर? ये वाला बोलो, क्लियर है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फॉर डिराइवेशन। So it is the area irrigated by 1 cubic of discharge from the canal. Okay, 1 cubic of discharge of water, canal water. Clear है ये वाला? हेलो, यस मैम। ओके। अब देखो क्वेश्चन में बहुत सारा प्रॉब्लम में तुमको हेक्टर में दे देता है, ठीक है। तो कभी कभी हमको क्या करना है, इसको मीटर स्क्वायर में, दिस इज एरिया, सो मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 1 hectare is equals to 10 to the power meter square. So this is the relation, okay, मीटर स्क्वायर और हेक्टर के बीच में। तो ये क्लियर होगा। या बेस है तुम्हारा, कितना दिन तक पानी डाले हैं, ठीक है। डेल्टा है तुम्हारा, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू रेज द क्रॉप। ड्यूटी क्या है, 1 क्यूमेक अगर पानी हम डालेंगे तो कितना एरिया इरिगेट होगा, दैट इज द ड्यूटी। ओके, और यूनिट विल बी इन हेक्टर, जो भी फॉर्मूला है उसमें हेक्टर होगा। वेयर बी विल बी, बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, ड्यूटी को डी से, डेल्टा को ट्राइंगल जो है डेल्टा से। ओके, डी यूनिट इज व्हाट, नंबर ऑफ डेज, कितना दिन के लिए पानी डालना है। सो बेस पीरियड इज इन डेज। ओके, नाउ लेट अस एज्यूम दैट डी हेक्टर ऑफ लैंड इज टू बी इरिगेटेड, ठीक है। तो डी हेक्टर मतलब एरिया कितना होगा, इतना मीटर स्क्वायर होना चाहिए। डी को हम कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। सो डी का यूनिट क्या है, डी का यूनिट इज हेक्टेयर। ओके, सो द एरिया ऑफ द लैंड इरिगेटेड इज डी हेक्टेयर। ओके, अब बोलो 1 क्यूमेक और 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इफ अप्लाइड फॉर द बेस पीरियड ऑफ बी डेज। मतलब कि अगर हम 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज, अगर हम मतलब उस डिस्चार्ज, उस फ्लो को, उस वाटर फ्लो को अगर हम फील्ड में अप्लाई करेंगे फॉर पीरियड ऑफ बी डेज, then what will be the volume of water that will be applied for B days? So the volume of the water which will be applied for B days कितना है, ये है 1 सेकेंड के लिए हम कितना वॉल्यूम अप्लाई कर रहे हैं, 1 मीटर क्यूब, राइट। तो B days के लिए हम कितना वॉल्यूम अप्लाई करेंगे, डेज को कन्वर्ट कर देना किसमें, सेकेंड में। तो देखो ये कन्वर्ट कर दिया हम, ये 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इनटू बी को हम कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेकेंड में, बिकॉज यूनिट इज इन सेकेंड। तो डेज को भी हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, 1 मिनट, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, तो टोटल ये जो भी वैल्यू है दैट इज इन सेकेंड। ये क्लियर है ये वाला लाइन? मतलब 1 क्यूमेक पानी, हाँ 1 क्यूमेक पानी अगर हम बी डेज में देंगे तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, इतना वॉल्यूम, मतलब बी इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इतना वॉल्यूम हम अप्लाई कर रहे हैं। नाउ इफ वी डिवाइड दिस वॉल्यूम बाय द एरिया, व्हाट वी विल गेट, मतलब 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज हम दे रहे हैं बी डेज फॉर, कहाँ पे दे रहे हैं, इतना एरिया में दे रहे हैं, राइट। तो अगर हमको वॉल्यूम पता है, अगर हमको एरिया पता है, तो कैन वी कैलकुलेट डी, मतलब कितना डेप्थ ऑफ वाटर जा रहा है। सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाटर विच इज अप्लाइड, क्या होगा फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ यस, सो वॉल्यूम बाय एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय एरिया कर दो, इतना वॉल्यूम कौन दे रहा है, 1 क्यूमेक, मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाला डिस्चार्ज, इतना वॉल्यूम पानी दे रहा है, ठीक है।
कितना एरिया में, सपोज इतना एरिया में दे रहा था d इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको हम लोग, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है क्या, 8.64 इन b बाई कैपिटल D। ओके, तो देखो ये सब कैलकुलेट करके आएगा ये वाला। ओके, वेर b क्या था, b वाज इन डेज, ओके तो डे में है, d वाज इन हेक्टर, इट इज इन हेक्टर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म विच इज, दिस इज नथिंग बट द डेप्थ। डेप्थ को हम लोग अगर करेंगे, सो डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला। सो दिस इज योर फॉर्मूला, मतलब देखो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा, ड्यूटी एंड बेस। ओके, सो दिस इज द डिराइवेशन। तो डिराइवेशन क्लियर है एवरीवन? ओके, यस मैम। सो ये फॉर्मूला तुम लोग साइड में लिख के रख सकते हो, अभी लिख के रखो कॉपी में, बाद में काम आएगा ये, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 8.64 d बाई डी। ओके, फिर b क्या है तुम्हारा, d डेल्टा, डेल्टा वो है डेप्थ ऑफ वाटर, इन मीटर में है, हम बोले थे मीटर में होगा, ठीक है। b इज इन तुम्हारा डेज में होगा, बेस पीरियड, d इज ड्यूटी इन हेक्टर। ओके, नाउ लेट अस डू द प्रॉब्लम। देखो क्या है, लेट अस से कोर पीरियड, कोर वाटरिंग पीरियड। ओके, ये जो भी दे रहा है कोर वाटरिंग, ठीक है। कोर वाटरिंग इज बेसिकली इट इज द इनिशियल, मतलब जब प्लांट इज इन यंग स्टेज जो वाटरिंग देते हैं, दैट इज द कोर वाटरिंग। ओके, तो कोर वाटरिंग कितना दिन के लिए दे रहे हैं, दैट इज कोर वाटरिंग पीरियड। सो कोर वाटरिंग पीरियड फॉर राइस इज हाउ मच, 10 डेज। जब प्लांट छोटा रहेगा तब 10 डेज के लिए हमको पानी देना है, दैट इज कॉल्ड कोर वाटरिंग पीरियड। ओके, एंड इट रिक्वायर्स 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मतलब 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर उसको चाहिए रहेगा ड्यूरिंग द कोर पीरियड। ओके, इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल फील्ड गेट्स वाटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कि रेनफॉल में भी अब वो डेली उसको कितना लग रहा है, डेली वाटर, एक्स्ट्रा वाटर रेनफॉल के थ्रू नेचुरली कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैंड दैट कैन बी इरिगेटेड विथ 1 क्यूमेक वाटर। मतलब अगर हम 1 क्यूमेक वाटर डिस्चार्ज अप्लाई करेंगे उस एरिया पे, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लैंड, जिसका ये सब क्राइटेरिया है, मतलब कि कोर वाटर पीरियड इतना है, डेप्थ इतना है, ये सब क्राइटेरिया है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज इज व्हाट, b इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग कोर वाटरिंग पीरियड को हम b एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ पीरियड है तो b से हम एज्यूम कर दे रहे हैं। तो b इज इक्वल्स टू 10 डेज। ओके, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब राइस के लिए कितना पानी चाहिए, ठीक है, कितना है, 60 सेंटीमीटर। हम बोले थे डेप्थ को हमेशा मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ओके, सो 0.6 मीटर। ओके, नाउ दिस इज द वाटर रिक्वायर्ड, इतना पानी चाहिए, डालना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें से रेनफॉल कुछ पानी दे देगा, ठीक है। सो व्हाट इज द, तो वाटर डेप्थ सप्लाइड फ्रॉम रेनफॉल कितना है, बोला है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। ओके, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड वाटर और व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द वाटर टू बी प्रोवाइडेड, कितना होगा, तुमको चाहिए 60 सेंटीमीटर। ओके, उसमें से बारिश का पानी 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो तुमको कितना आर्टिफिशियली कितना देना है, टोटली 60, नेचुरली इज 10, देन आर्टिफिशियली कितना देना है। सो लेट द डेप्थ ऑफ द वाटर टू बी सप्लाइड आर्टिफिशियली, जो हम लोग इरिगेशन के थ्रू कर रहे हैं, बी डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा विल बी कितना है, 0.6 माइनस 0.1, 0.5 मीटर। ओके, तो ये हमको कैलकुलेट हो गया, हम लोगों ने ये b निकल आया, डेल्टा निकल आया। ओके, अब क्या चाहिए हमको, एरिया ऑफ लैंड, मतलब क्या है, ड्यूटी। ड्यूटी तो इट्स नथिंग बट द एरिया, राइट, एरिया इरिगेटेड, तो ड्यूटी हमको चाहिए। तो नीड टू कैलकुलेट व्हाट, अच्छा ये गलत है। ओके, दिस वन इज गलत। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लैंड। ओके, तो ये सब दिया है, देन प्लीज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लैंड, d, ड्यूटी निकालो फ्रॉम रिलेशनशिप, ये हमको पता है, राइट, डेल्टा ड्यूटी एंड बेस पीरियड का रिलेशनशिप हमको पता है, जिसमें से b मतलब बेस पीरियड ऑलरेडी गिवन, डेल्टा वी हैव कैलकुलेटेड, अब हमको चाहिए एरिया, राइट, सो एरिया इज ड्यूटी।
राइट? तो ड्यूटी निकालो। मैम 172.8 हाँ, सो ड्यूटी इज हाउ मच? বাকিদের কত এসেছে? কমেন্ট সেকশনে লেখো, না হলে বলো আমাকে। ও সরি, ম্যাম 172.8। okay, 172.8. What about the others? देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, what is the area of the land that can be irrigated with 1 cubic water? ठीक है, मतलब ये पूरा तुमको डायरेक्टली बोल ही दिया है, क्या? ड्यूटी निकालो, डी निकालो, ठीक है, कि 1 क्यूबिक वाटर से कितना एरिया हम लोग इरिगेट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द ड्यूटी इटसेल्फ, राइट? तो तुमको डायरेक्ट बोल दिया ड्यूटी निकालो, राइट? सो ड्यूटी के लिए ये फॉर्मूला हमको चाहिए था, दिस वन फॉर्मूला। सो वी हैव गॉट ड्यूटी का यूनिट क्या होगा? आई सेड इट्स यूनिट इज शुड बी इन हेक्टेयर, ओके। बी था डेज में, डेल्टा था मीटर में। ये जो फॉर्मूला है ऐसे हम डिराइव किए कि इसका डेज में रहेगा, इसका हेक्टेयर में रहेगा, इसका मीटर में रहेगा, ऐसे डिराइव किया है, ठीक है। सो 172.8 हेक्टेयर, तो दिस दैट मीन्स 1 cubic of water can irrigate this much hectare of land. Done everyone? यस मैम, Okay. डन। Now अभी कौन आ रहा है? Now नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोग का? अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपार्ट फ्रॉम दिस डेल्टा, ड्यूटी, बेस, बाकी और भी बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज है, वी विल अंडरस्टैंड, ओके। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है कि कमांड एरिया। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कमांड एरिया? ओके, कमांड एरिया इज नथिंग बट द एक टाइप का आता है कि सपोज ये वाला कैनल है, देखो ये वाला कैनल, रिवर जा रहा है, रिवर से फिर कैनल जा रहा है, कैनल से फिर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटरी जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरी से तुम्हारा आउटलेट जा रहा है, आउटलेट से फील्ड में जाएगा, ओके। सी रिवर, कैनल, रिवर, चैनल, कैनल, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर आउटलेट से फील्ड में जाएगा। तो ये रिवर से कितना वाटर तुम्हारा, सॉरी कितना एरिया तुम्हारा क्या बोलते हैं इसके अंडर में आएगा, कितना एरिया हम लोग इरिगेट कर सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं अंडर दिस कैनल, ओके। दैट इज कॉल्ड योर ग्रॉस कमांड एरिया, ओके, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस कमांड एरिया और जीसीए, ओके। दूसरा क्या है? इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि देयर विल बी सम रेसिडेंशियल्स, रास्ता भी हो सकता है, राइट? या कुछ अदर पोर्शंस ऑफ द एरिया भी हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग वी कैन नॉट कल्टिवेट, यूज दैट एरिया एज फॉर कल्टिवेशन, राइट? तो बहुत सारा एरिया क्या हो जाता है, वो बाद चला जाता है, मतलब वी हैव टू डिलीट दोज एरियाज फ्रॉम द ग्रॉस कमांड एरिया, मतलब कि दोज एरिया विल नॉट बी कंसिडर फॉर इरिगेशन पर्पस, राइट? मतलब कल्टिवेशन पर्पस। तो इसमें से जो एरिया विच कैन बी यूज फॉर कल्टिवेशन, ओके, जहाँ पे हम कल्चर कर सकते हैं, दैट इज योर कल्चरेबल कमांड एरिया, जो कि ये है, ठीक है। जैसे ये पूरा था तुम्हारा ग्रॉस कमांड एरिया, ठीक है। अब इसमें से देखो यहाँ पे रेसिडेंट दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे तो कल्टिवेशन होगा नहीं। अब ये टोटल एरिया जो बचा है इसमें कल्टिवेशन हो सकता है, देखो इसमें हम कर सकते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड कल्चरेबल कमांड एरिया। अब इसके अंदर भी कुछ पोर्शन वी मे यूज फॉर कल्टिवेशन और वी मे नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर भी दो एरिया आता है कि हम कुछ एरिया वी विल यूज फॉर कल्टिवेशन, ओके, और कुछ एरिया ऐसे आइडियल रखेगा, कल्टिवेशन नहीं होगा वहां पे, लेकिन ऐसे आइडियल है, ठीक है, लेकिन दैट कम्स अंडर कल्टिवेशन, मतलब वहां पे कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने किया नहीं। सो what is that? Cultivable cultivated area. Suppose this area is used for your cultivation, ठीक है। तो यहाँ पे कल्टिवेशन अगर होगा तो क्या होगा? दैट इज योर कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया। और रिमेनिंग जो एरिया था, सपोज ये वाला एरिया, इट इज नॉट यूज्ड फॉर कल्टिवेशन, ऐसे आइडियल रख दिया है, ठीक है। सो दैट इज योर कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया, मतलब यहाँ पे कल्टिवेशन हो सकता था लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। सो दैट इज कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया, ओके। ये क्लियर है? ग्रॉस इज द टोटल, ठीक है। उसके अंदर में आएगा कल्चरेबल कमांड, मतलब कहाँ पे हम लोग कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं, जिसमें करेंगे उसको बोलते हैं कल्चरेबल कल्टिवेटेड, जिसमें नहीं करते उसको बोलेंगे कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड, ओके।
अब देखो यहाँ पे क्या था, हम बोले थे कोर वाटरिंग एंड पैलियो वाटरिंग क्या है। कोर वाटरिंग क्या था, फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग व्हेन प्लांट्स आर यंग। मतलब जैसे कि ये वाला अगर जाएंगे, देखो इसमें अगर देखेंगे, ये वाला जो अगर देखेंगे, देखो ये जब प्लांट स्मॉल था, यंग, आफ्टर सोइंग, सो करने के बाद हम जो इनिशियल वाटर दे रहे हैं व्हेन द प्लांट, सपोज यहाँ तक वो यंग था, इसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे कि यहाँ 3 ठो तक ये यंग था, तो इतना दिन तक जो हम पानी डाल रहे हैं दैट इज द कोर वाटरिंग। और ये जो पीरियड, इतना पीरियड के लिए हम पानी डाल रहे हैं दैट इज द कोर वाटर पीरियड। ओके, दैट इज द कोर पीरियड। ओके, अब दूसरा क्या था, पैलियो, PALEO, पैलियो वाटरिंग। पैलियो वाटरिंग क्या है, इट इज बिफोर सोइंग, मतलब ये सब कोर वाटरिंग आता है आफ्टर सोइंग टिल कब तक, जब तक ये प्लांट्स यंग था। ओके, अब बेस पीरियड क्या था, एकदम आफ्टर सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक। ठीक है, अब पैलियो क्या है, पैलियो इज व्हाट, बिफोर सोइंग। बिफोर सोइंग मतलब अगर यहाँ पे पूरा मॉइस्चर कंटेंट एकदम कम है, लेस, देयर इज वेरी ड्राई, सॉइल इज वेरी ड्राई, तो हमको इनिशियल सोइंग करने से पहले वी हैव टू उसको मॉइस्चर कर देना है, राइट। तो हम लोग कुछ पानी छिड़क के या डाल के वहाँ पे उसको मॉइस्ट कर देते हैं, तो दैट वाटरिंग इज योर पैलियो वाटरिंग। ओके, पैलियो वाटरिंग इज बिफोर सोइंग, और कोर वाटरिंग बोलो, बेस पीरियड बोलो, दैट इज आफ्टर सोइंग। ओके, तो देखो, see, first watering after sowing when plants are young, and paleo is water before sowing. Okay, to make the soil in moist condition. So these are the command areas and the different other terminologies. Okay, now let us solve one problem based on this command area. Okay, तो ये वाला करो। Let us say you got cultivable command area of 2000 hectare. Okay, now मतलब कि कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है, CCA, जहाँ पे हम लोग कल्टीवेट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ये बोल दिया है टोटल। ठीक है, टोटल कल्टीवेटेड एरिया, मतलब जहाँ पे वी कैन आई कल्चरेबल कमांड कौन सा था, देखो ये वाला। ओके, ये पूरा ये। ओके, जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ हम करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। ओके, तो ये CCA तुमको दिया है। सो cultivable command area is 2000 hectare. Now you use only what, 50% for cultivation. Now this is what, ये 50% of cultivation, ये कौन सा एरिया है, इसका 50% ही तुम कल्टीवेट कर पाओगे। Then what is this area known as cultivable cultivated area. Yes, cultivable cultivated area. Okay, मतलब हमको यहीं पर ही पानी वानी डालना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा। So 50% है वो। ठीक है, अब ये एरिया को हम कंसीडर करेंगे फॉर कैलकुलेशन। नाउ बेस पीरियड बोल दिया कितना, 100 डेज। ओके, एंड द डेप्थ रिक्वायर्ड इज हाउ मच, 120 सेंटीमीटर। मतलब ये डी दे दिया है तुमको, डेल्टा भी दे दिया है। ओके, नाउ हाउ मच शुड बी द डिस्चार्ज फ्रॉम द चैनल। ठीक है, चैनल से कितना डिस्चार्ज होना चाहिए जिससे हम अगर 120 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर अगर अप्लाई करेंगे थ्रू आउट बेस पीरियड ऑफ 100 डेज इन द एरिया ऑफ कितना, 50% ऑफ 2000, मतलब 1000 एरिया में, अगर हेक्टेयर एरिया में अगर हम पानी डालेंगे तो कितना क्यूमेक ऑफ वाटर चाहिए, यही पूछा है, कितना डिस्चार्ज चाहिए। ओके, अब आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द डिस्चार्ज चेक करो वेदर दैट डिस्चार्ज इज सफिशिएंट और नॉट। मतलब कि इज 1.5 क्यूमेक इनफ, मतलब तुम्हारा ये जो भी डिस्चार्ज आएगा वो क्या लेस देन 1.5 आ रहा है कि ग्रेटर देन 1.5। अगर लेस देन 1.5 आएगा तो मतलब दैट इज इनफ। तुमको चाहिए सपोज 1.4 चाहिए, कैलकुलेट करके निकल आ रहा क्यूमेक इज 1.4। ठीक है, और पूछा है कि ये 1.5 क्यूमेक इनफ है। हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम्हारा कैलकुलेशन में आ रहा है 1.4 तो ऑब्वियसली विच इज लेस देन 1.5, सो इट इज इनफ। अगर कैलकुलेशन में तुम्हारा सपोज 1.6 आ गया देन इट इज नॉट इनफ, 1.5 से इनफ नहीं होगा, हमको एक्स्ट्रा और क्यूमेक चाहिए। ओके, तो यही पूछा गया है। तो कैन यू सॉल्व एवरीवन? CCA दिया है 2000 हेक्टेयर्स। ओके, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया हम बोले थे कितना, 50%, तो कितना है
मैम ফার্স্ট ওয়ান ওটা কি জিসিএস ম্যাম 2000 হেক্টর সিসিএ, কালচারেবল কমান্ড এরিয়া, সিসিএ। একটু ট্রাই করো, ঠিক আছে, একটু ট্রাই করো সবাই। कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया हाउ मच, 50% ऑफ सीसीए, मतलब 100,000 हेक्टेयर। ओके, और क्या क्या दिया है, डेज पीरियड 100 डेज दिया है, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड कितना है, डेल्टा दे दिया है 120 सेंटीमीटर। रिमेंबर इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, डेल्टा को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। मीटर में। ओके, तो मीटर में। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नीड टू कैलकुलेट व्हाट, डिस्चार्ज इन क्यूमेक। ओके, मीटर क्यूब पर सेकेंड में डिस्चार्ज निकालो फ्रॉम द कैनल सो दैट इट कैन इरिगेट 1000 हेक्टेयर ऑफ कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है, फॉर दिस मच डेप्थ ऑफ वाटर एंड फॉर दिस मच डेज ऑफ इरिगेशन। ओके, तो कैलकुलेट ड्यूटी ऑफ द कैनल फर्स्ट। ड्यूटी का मतलब ही है कि एक क्यूमेक से कितना एरिया कल्टीवेट कर सकते हैं, ड्यूटी का मतलब वही है, एक क्यूमेक से कितना एरिया कल्टीवेट करेंगे। ड्यूटी कितना आ रहा है, আচ্ছা আমি রেকর্ড করেছিলাম, ভুলে যাই রেকর্ড করতে। হ্যাঁ ম্যাম রেকর্ড চলছে। ম্যাম ও আচ্ছা, मैम 7200 मीटर स्क्वायर है। 7200 मीटर स्क्वायर। ड्यूटी शुड बी इन हेक्टर। वो अच्छा अच्छा ठीक है। मैम 720। 720 हेक्टर। व्हाट अबाउट द अदर्स, बाकी दैट। হ্যাঁ ম্যাম हाँ मैम 720। 720 मैम। सो 720 हेक्टर्स क्या है, ये एक क्यूमेक से 720 हेक्टर्स मतलब इरिगेट हो सकता है, इतना एरिया इरिगेट हो सकता है। देन व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है हाउ मच, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कितना एरिया हो सकता था, बोले थे 720 हेक्टर्स हम एक क्यूमेक से बना सकते हैं, मतलब इरिगेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा एरिया कितना है, कितना एरिया वी हैव टू इरिगेट, 1000। देन फाइंड आउट 720 के लिए एक क्यूमेक है तो 1000 के लिए कितना चाहेगा, कितना लगेगा, 1.38 cubic. The discharge required to irrigate 720 hectare of land is 1 cubic as per the definition of this relation. Okay, so discharge required for irrigating 1 hectare कितना है, 1 by 720. तो discharge required to irrigate 1000 hectare कितना है, simply unitary method. Okay, तो आ रहा है देखो 1.39। तो ये क्या इनफ है, ऑब्वियसली इनफ है, क्योंकि हम लोग को बोला है इज इट इनफ, 1.5 क्यूबिक क्या इनफ है, हाँ अगर तुम 1.5 क्यूबिक का पानी दोगे तो मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ, बिकॉज हमको एक्चुअली में कितना लगेगा, इतना एरिया इरिगेट करने में इतना क्यूबिक ऑफ पानी लगेगा। क्लियर एवरीवन, दिस मेथड, दिस टू मेथड, दिस टू न्यूमेरिकल। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, तो ये वाला लेक्चर यहीं तक ही है, ठीक है। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट देन प्लीज आस्क, ठीक है। और बोल रहे थे कि सेकेंड लेक्चर अभी कंटिन्यू करें ना कि ब्रेक दें, छोटा सा ही है, अभी 10 मिनट का ब्रेक दें।
or shall I continue? बोलो। हेलो, ম্যাম কন্টিনিউ করে দিন একবার। একেবারে কন্টিনিউ করে দিই, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেব, বলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাকিদের হ্যাঁ ম্যাম কন্টিনিউ করুন। okay, that's it. Okay, so let us continue our next lecture. অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এই যে ট্রান্সপোর্টেশন সেটা আমাকে নিতে বলেছে, ঠিক আছে, ডিপার্টমেন্ট থেকে। তো আমি আজ থেকে পড়াবো না বলে এটা কন্টিনিউ করলাম, মানে দুটো ক্লাস নিয়ে মার্চ করে। ওকে, নেক্সট ক্লাস থেকে আমি হাইওয়েটা পড়াবো। আচ্ছা, হাইওয়েতে কত দূর হয়েছে তোমাদের? ভুলে গেছি ম্যাম, কত দূর? ভুলে গেছি ম্যাম, কবে ক্লাস হয়েছিল মনে নেই। ওকে, এক মাস আগে মনে হয় লাস্ট ক্লাস হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই এক মাস বলছি, সরি 20 দিন আগে মনে হয় লাস্ট ক্লাস হয়েছিল। সিলেবাসটা যে কি করে শেষ করাবো বুঝতে পারছি না। ওকে, ঠিক আছে। Now, this is our 23rd lecture. Okay, we have already gone through this. I think you have understood what do you understand by duty, delta, base. Okay, so here we will give further discussion. We will go for further discussion about the duty. What do you understand by the duty? We have already learned. Okay, now what we will learn? We will learn what is the factors that will affect your duty. Okay, and what is the and how we can improve the duty. Duty means what? Duty means your area to be irrigated, right? तो हमको जितना ज्यादा एरिया अगर हम कम एफिशिएंटली यूज करके, पानी कम यूज करके जितना ज्यादा एरिया हम इरिगेट कर पाएंगे, दैट मीन्स दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस ओनली, राइट? पानी का खर्चा, मतलब पानी ज्यादा तो वेस्ट नहीं हो रहा है ना इरिगेट करने के लिए। तो जितना ज्यादा एरिया अगर हम अच्छे से इरिगेट कर पाएंगे, मतलब कम अमाउंट ऑफ वाटर से, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये सब हम कैसे करेंगे? हाउ वी विल इम्प्रूव? ओके, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्यूटी वी विल लर्न, एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न सम एफिशिएंसीज, इरिगेशन एफिशिएंसीज। मतलब कि है कि तुम पानी जितना अप्लाई करोगे और जितना वो पानी रूट जोन के अंदर जा रहा है, ठीक है, ये क्या 100% है? तो तुम्हारा जैसा जैसा तुम्हारा मेथोडोलॉजी, कल्टीवेशन या इरिगेशन मेथोडोलॉजी मतलब मॉडिफाइड होता जाएगा, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, तो ये वाला टुवर्ड्स 100% हो सकता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली इट विल 10 to 100%, मतलब कि तुम जितना पानी दे रहे हो उतना ही वो ले रहा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सपोज दे रहे 100 सेंटीमीटर का पानी, लेकिन रूट जोन में जाएगा या मतलब आफ्टर सो मेनी लॉसेस रूट ले पा रहा है कितना? ओनली सपोज 50%, मतलब कि 50 सेंटीमीटर पानी ही वो ले पाएगा। सो दीज आर द एफिशिएंसीज, ठीक है? तो वी विल लर्न अबाउट दिस टू थिंग्स नाउ। Duties, factor affecting duties, how to improve irrigation, and one numerical based on your efficiency. Okay, see, area of the land that can be irrigated. Okay, as I said, एक cubic unit volume means what? 1 meter cube. Okay, 1 meter cube per second. So एक cubic पानी से how much area of the land is irrigated? That is your duty. Okay, in HEP ये तो समझ में आ गया है। यस मैम। These are the mainly ये factors काम करता है, ठीक है, which will affect your ड्यूटी कि मतलब कम बेसी कब होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। कोई बोल सकता है टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स के कैसे ये तुम्हारा ड्यूटी अफेक्ट करेगा? ड्यूटी याद रखो, इट इज द एरिया टू बी इरिगेटेड, ओके, बाय 1 क्यूबिक ऑफ वाटर। तो अब ये डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप ये एरिया कैसे डिफर कर रहा है, हाउ इट इज वेरिंग। ম্যাম কোন একটা ক্রপ যদি বেশি ডেল্টা লাগে তো সেই ক্ষেত্রে তো এরিয়া কমে যাবে। एग्जैक्टली सपोज तुम 2 कैनल है, 2 कैनल से 1 क्यूबिक ऑफ वाटर जा रहा है, ठीक है, सेम अमाउंट का वॉल्यूम तुम दे रहे हो, लेकिन एक फील्ड में है तुम्हारा पैडी है और एक फील्ड में तुम्हारा व्हीट या राइस मतलब व्हीट है, ठीक है।
लेकिन दोनों दोनों अलग अलग टाइप का क्रॉप है, दोनों के लिए डेल्टा विल बी डिफरेंट। मतलब तुम्हारा पैडी के लिए क्या हो जाएगा, पैडी के लिए तुम्हारा ज्यादा लगेगा, ठीक है, और वीट के लिए थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि दोनों का ही तुम्हारा डेल्टा इज डिफरेंट। अगर डेल्टा डिफरेंट रहेगा, यू आर सप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ द वाटर टू द फील्ड, ठीक है, लेकिन ड्यूटी डेल्टा इज डिफरेंट, मतलब किसी का कम है, किसी का ज्यादा पानी देना पड़ रहा है, डेप्थ ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली जिसका कम है वो ज्यादा एरिया से लेकर वो मतलब काम में आएगा, ज्यादा एरिया में जाके वो इरिगेट कर पाएंगे अगर उसका डेप्थ कम है। और जिस क्रॉप के लिए ज्यादा डेप्थ चाहिए, जैसे तुम्हारा राइस, इन सब के लिए क्या होना चाहिए, फ्लडेड इरिगेशन होना चाहिए। फ्लड इरिगेशन मतलब ज्यादा डेप्थ का पानी देना चाहिए, तो क्या होगा, वो कम एरिया में वो 1 क्यूबिक ऑफ वाटर कम एरिया को इरिगेट कर पाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे योर ड्यूटी विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप कैसे वेरी करेगा, मतलब टाइप ऑफ द सॉइल। कोई कोई सॉइल का क्या है, उन लोग का जैसे कि ग्रेन्स, राइट, सॉइल मेनली यहाँ पे क्या आता है, ग्रेन प्रॉपर्टी, मतलब कि वो ग्रेनुलर है, परमीबल है या इम्परमीबल है, ऐसा। तो जो परमीबल टाइप का सॉइल है उन लोग का क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहता है, तो वो नीचे ड्रेन होके चला जाता है। हम क्या बोले थे, ग्रेविटेशनल वाटर इट विल ड्रेन आउट। जो मैक्रोपोर्स में जो वाटर जा रहा है वो माइक्रो में जो है वो रह जा रहा है, राइट, रिटेन कर जा रहा है अंडर ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। बट जो मैक्रोपोर्स है उसमें क्या हो जाता है, वाटर इट विल ड्रेन आउट, राइट। तो इसके लिए भी तुम्हारा देयर विल बी सम लॉसेस, ठीक है। तो जो तुम ग्रैनुलर सॉइल में जो पानी दोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करके वो नीचे ग्राउंड वाटर में सप्लाई देता रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा कम पानी, तुम सेम अमाउंट ऑफ पानी क्या बोलते हैं, एक क्लेई सॉइल में दो और सेम अमाउंट ऑफ पानी तो क्या बोलते हैं सैंडी सॉइल में दो, ठीक है। दोनों में एरिया ऑफ irrigation that will be irrigated will be vary, ठीक है। किसमें कम होगा बोलो तो, किसमें एरिया कम इरिगेट होगा, सैंडी में या क्लेई में? सैंडी থেকে एरिया कम হবে, यस, क्यों, सैंडी में ज्यादा नीचे मतलब एब्जॉर्ब हो जा रहा है, लॉसेस हो जा रहा है, राइट। तो वो पानी जितना डाल लो वो तो ले रहा है, खुद ही ले रहा है, तो आसपास में कैसे जाएगा, तो एरिया विल बी लेस। वेरएज क्ले क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उसका मॉइस्चर कंटेंट फुल हो जा रहा है, अब वो उसका बगल वाला में देगा वो पानी, राइट। तो करते करते दैट एरिया विल बी मोर। सो योर इन सम सॉइल वाटर लॉसेस इज मोर, सो एरिया ऑफ द लैंड इरिगेटेड बाय 1 क्यूबिक ऑफ कैनल वाटर विल बी रिड्यूस्ड। अब ये रिड्यूस्ड हो गया मतलब योर ड्यूटी विल बी रिड्यूस्ड। सो ऐसे वेरी करता है, ओके। ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द कल्टिवेशन मेथड, मतलब कि जैसे तुम जितना मॉडिफाई करते जाओगे तुम्हारा ड्यूटी मतलब एरिया ऑफ द लैंड टू बी इरिगेटेड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो मोर इफेक्टिवली वी यूज वाटर, मतलब कि कल्टिवेशन मेथड ऐसे यूज कर रहे हैं कि हम इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं वाटर को, सो मोर एरिया विल बी इरिगेटेड, ओके, बाय 1 क्यूबिक ऑफ वाटर, सो मोर ड्यूटी will be irrigated. So these are the factors, okay. दूसरा है कि it depends upon it varies from place to place. ऐसा नहीं है कि एक जगह का मतलब अगर सेम तुम लोड ले रहे हो, सब कुछ कंडीशन कांस्टेंट रख रहे हो, बट प्लेस को चेंज कर दे रहे हो तो भी तुम्हारा ड्यूटी विल बी रिड्यूस्ड, ओके, मतलब वेरी करेगा। कैसे, सपोज दिस इज योर, एक्चुअली हम लोग का पानी कैसे आता है, मेन आता है सोर्स से आता है, राइट, इट में बी रिजर्वर और रिवर। तो रिवर से आ रहा है पानी, ठीक है, फिर जाएगा कैनल है, फिर उसके नीचे क्या है, चैनल्स और छोटा चैनल्स है, फिर चैनल से होकर आउटलेट में जाएगा, फिर आउटलेट से कहाँ पे जाएगा, फील्ड में जाएगा, ओके। तो यहाँ से देखो 1 क्यूबिक ऑफ वाटर जा रहा है, ठीक है, तो कितना एरिया इरिगेट करेगा, सपोज दैट इज 5 हेक्टर। अगर रिवर से डायरेक्ट आता तो 5 हेक्टर एरिया इरिगेट कर पाता 1 क्यूबिक ऑफ वाटर से, ठीक है। लेकिन ये सप्लाई होता, ट्रांसफर होता जा रहा है, रिवर से अब जाएगा कहाँ पे, कैनल में, सो देयर विल बी सम लॉसेस, राइट, ट्रांसफर लॉस जिसको बोलते हैं। अब कैनल से देखो इस तरफ चैनल में चला जा रहा है तो ये और कम एरिया होता जा रहा है, राइट। तो करते करते देखो हम जब एक्चुअली हमको जो चाहिए, कहाँ पे चाहिए, तुमको यहाँ वाला नहीं चाहिए, वी आर अप्लाइंग इन द फील्ड, ठीक है।
तो फील्ड का दिस ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितना भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ये वाला कंसिडर करके नहीं कर रहे, वी आर कंसिडरिंग द फील्ड में ड्यूटी कितना है, दैट ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो पहले 5 तक घटते घटते ड्यू टू लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉस और भी कन्वेंस लॉस, बहुत सारा लॉस करते करते दैट एरिया इज reduced to 4 hectare only. So it is varying from place to place, मतलब जैसे जैसे ये और ट्रांसफर करते जाएगा और ये घटता करता जाएगा। ठीक है, so this is the factors affecting duty. Now how to improve duty? अच्छा, कोई बोल सकता है कैसे improve कर सकते हैं हम लोग ड्यूटी को? कैसे improve कर सकते हैं हम ड्यूटी को, मतलब ये जो एरिया ऑफ द लैंड टू बी इरिगेटेड, हाउ कैन वी improve? इसका नंबर क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, कैसे कर सकते हैं? যদি ম্যাম এই লস গুলোকে কমানো যায় তাহলে একটা হতে পারে। হ্যাঁ, লস কমানো যায়। এবার লস কমানোর জন্য আমাদের কি করতে হবে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি কি কি করতে হবে, সেটা আমরা আসছি। ঠিক আছে, আর আছে তোমাদের কি আর देयर आर सम अदर इम्प्रूवमेंट। ये क्या बोले थे कि हम इरिगेशन सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? मेथड ऑफ इरिगेशन को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे है। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स हाउ टू इम्प्रूव। देखो लेवल लैंड, ठीक है, हम लोग जैसे इरिगेशन टाइप्स में जब पढ़े थे हम लोग का लैंड इट शुड बी लिटिल बिट स्लोपी, राइट? जैसे जो भी फ्लड मतलब कन्वेंशनल टाइप का इरिगेशन में जो है फ्लड टाइप इरिगेशन, उसमें क्या करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स था कि पानी को खुद ही बह जाना है, हमको नहीं देना है। ओके, इट विल दैट इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन, राइट? फ्लो इरिगेशन मतलब फ्लो इरिगेशन में क्या चाहिए, देयर विल बी सम स्लोप, मतलब फील्ड थोड़ा टिल्ट होना चाहिए, फील्ड का स्लोप थोड़ा होना चाहिए जिससे कि पानी जहां से आ रहा है उसका लेवल थोड़ा ऊपर हो और जिस एरिया में जाएगा उसका लेवल थोड़ा नीचे हो, जिससे फ्लो होके एरिया इरिगेट होता होता जाए, राइट? सो अगर वैसा भी होता है तो उसमें भी लॉसेस है, लेकिन उसमें भी लॉस है क्योंकि वाटर इज नॉट इन स्टैंडिंग कंडीशन, राइट? अगर वो जम ही नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, वो बह बह के चला जा रहा है, तो ड्यूटी हम लोग का एरिया भी उतना नहीं मतलब क्या बोलते इरिगेट हो पा रहा है, राइट? सो चाहिए कि हमको जितना हो सके वी विल लेवल आवर लैंड, मतलब इट शुड बी लेवल कंडीशन। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इम्प्रूव आवर इरिगेशन मेथड्स, राइट? तो अगर लेवल लैंड रहेगा तो क्या होगा, लेस सीपेज, मोर एरिया कैन बी इरिगेटेड। ओके, मतलब लेस सीपेज होगा, उससे एरिया और इरिगेट होगा, मतलब और एरिया मतलब मोर ड्यूटी। ठीक है, जो तुमने अभी बोला पुलक ने कि लॉसेस, हाउ वी कैन लॉस रिड्यूस दिस लॉस, जो ये वाला था, ये सब लॉस जो था, ये लॉस जो हो रहा है इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? तो जो भी ये कैनल्स डिजाइन हम कर रहे हैं इट शुड बी लाइन्ड कैनल। ठीक है, एक होता है अनलाइन, मतलब जो नेचुरली हो गया माटी को काट के, दूसरा क्या है उसी कैनल को हम एम्बैकमेंट साइड स्लोप्स को हम क्या बोल रहे हैं, कंक्रीट कर दे रहे हैं, राइट? कंक्रीटिंग कर देने की वजह है वी आर लाइनिंग द कैनल। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी लाइन द कैनल, इट विल रिड्यूस द सीपेज लॉस, मतलब कैनल से जो सीपेज होता जा रहा है दैट विल बी रिड्यूस। सो लाइन कैनल से क्या हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा, मतलब मोर पानी तुम्हारा रीच करेगा फ्रॉम टू द फील्ड। ओके, सो मोर एरिया विल बी इरिगेटेड। प्रॉपर इरिगेशन मेथड, ये तो हम पहले बोले थे कि इफेक्टिवली अगर यूज करेंगे। अच्छा, इसमें से बोलो तो कौन सा इफेक्टिव तुमको लग रहा है, जितना भी इरिगेशन हम पढ़े थे उसमें से कौन सा इफेक्टिव था? फ्लड इरिगेशन, फरो इरिगेशन, ना कि स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन, कौन सा इफेक्टिव लगा तुमको? Which one was the more effective, most effective? मैम स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर भी है और एक होता है क्या तुम्हारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, एकदम प्लांट के रूट में जाके हम पानी दे रहे हैं, मतलब जितना जरूरी है उतना ही हम उसको दे रहे हैं, अननेसेसरी वी आर नॉट वेस्टिंग द वाटर, मतलब पूरा एरिया में पानी डाल के ऐसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट मतलब प्लांट का एकदम रूट जोन से होकर पाइप जा रहा है, उस पाइप्स में परफोरेशन रहेगा, उससे पानी ड्रिप होता रहेगा, ड्रिप होता रहेगा तो रूट में एब्जॉर्ब होता, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता रह रहा है। सो दैट इज इफेक्टिव यूज। ओके, सो वी हैव टू यूज सच काइंड ऑफ इरिगेशन मेथड, बट इट इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो। तो इसलिए मतलब हमको ऑप्टिमम रखना है, राइट? ऑप्टिमाइज करना है कि इतना भी नहीं करना कि कॉस्टली, मतलब कॉस्ट ही ज्यादा हो जाए बेनिफिट से, राइट? सो प्रॉपर इरिगेशन हमको मेंटेन करते रहना है। ओके,
दूसरा है कि क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि वन फील्ड इज देयर, ओके, उसी फील्ड में तुम कुछ सीजन के लिए एक टाइप का क्रॉप इरिगेट कर रहे हो, फिर नेक्स्ट सीजन में दूसरा टाइप का क्रॉप इरिगेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इफ वी डू नॉट फॉलो द क्रॉप रोटेशन देन व्हाट प्रॉब्लम इज ऑकरिंग, अगर तुम एक ही फील्ड में मतलब थ्रू आउट द ईयर एक ही प्लांट को तुम कर रहे हो, सेम क्रॉप को तुम वहां पे कल्टीवेट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, जो क्रॉप्स वो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो मिनरल्स चाहिए रहता है वो तो ले रहा है प्लांट रूट्स से, मतलब प्लांट तो सॉइल से वो मिनरल सब एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो सॉइल में दैट मिनरल का डेफिशिएंसी हो जाएगा। ओके, तो मिनरल का डेफिशिएंसी हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली उसका जो प्रॉपर्टीज है, जो क्वालिटी है, वो डिटेरोइट हो जाएगा। तो वहां पे हम दूसरा क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे, करना चाहेंगे भी, तो वो ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं करेगा, तो ग्रो जल्दी नहीं करेगा, हम लोग का आउटपुट विल बी लेस, ठीक है। सो आवर लेस विल बी द ड्यूटी, दैट्स लाइक क्रॉप रोटेशन इज इम्पोर्टेंट, इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव। दूसरा है कि ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द इरिगेशन वाटर। ऐसा नहीं कि हमको पूरा मतलब ज्यादा पानी देना या एकदम कम कंजूसी करना है, वैसा भी नहीं है, वी हैव टू सप्लाई इनफ वाटर, ऑप्टिमम करना है, ठीक है। वो उसके लिए देखो, सपोज दिस इज द यील्ड, मतलब आउटपुट है ये, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा पानी का डेप्थ है। अब देखो पानी का डेप्थ इस तरफ बढ़ रहा है, तो देखो ये भी यील्ड भी बढ़ रहा है, मतलब पानी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो यील्ड बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा कि तुम इस डेप्थ के बाद अगर ज्यादा पानी डालते जाओगे तो यील्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो ज्यादा आउटपुट देना नहीं देगा, राइट, योर यील्ड विल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो मैक्सिमम यील्ड कहाँ पे हो रहा है, उसके लिए कितना पानी देना चाहिए वही हम देंगे, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं, ओके। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, इरिगेशन वाटर। क्लियर दिस वन, इम्प्रूवमेंट, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर ड्यूटी। सो लेवल है, लाइन कैनल है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड है, क्रॉप रोटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ irrigation water utilization. Clear? Hello. मैम Okay. Now comes another important topic, which is your irrigation efficiencies. Okay. Now there are mainly three types of irrigation efficiencies. क्या क्या है, एक है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, इसको हम नॉट नेसेसरी कि यही इसका शॉर्ट टर्म है, ओके, ये जस्ट हम दिखाने के लिए ये शॉर्ट टर्म में एब्रिविएशन दे दिए है, ओके। सो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी एंड वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो कोई बोल सकता है ये तीनों में से मतलब कौन सा क्या एफिशिएंसी लग रहा है। रिमेंबर, एफिशिएंसी का मतलब है कि हाउ एफिशिएंटली वी आर कैपेबल ऑफ यूजिंग द वाटर, मतलब जो भी हम प्लांट को पानी दे रहे हो वो कितना ले पाएगा, दैट इज द एफिशिएंसी, ओके। नाउ ऑल दिस एफिशिएंसीज विल बी फैक्टर और वी कैन से दिस विल बी रेशियो, ओके। कुछ से कुछ का रेशियो निकालना है अल्टीमेटली हमको। तो ये वाला बोल सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कन्वेंस एफिशिएंसी। कन्वेंस किस वजह से हो रहा है, कन्वेंस कन्वेयर बेल्ट जो होता है वो क्या होता है, কনভে করছে তো कन्वेंस का मतलब है ट्रांसमिशन लॉस, ओके। मतलब इट इज मेनली ये एफिशिएंसी किसको सिग्निफाई करेगा, इट सिग्निफाइज द ट्रांसमिशन लॉस, कि अगर इसका कन्वेंस एफिशिएंसी बहुत कम है मतलब लॉसेस ड्यू टू ट्रांसमिशन इज वेरी हाई। ये याद रखना, जितना ज्यादा एफिशिएंट मतलब लॉसेस विल बी लेस, ये उल्टा है, ओके। तो एफिशिएंसी अगर बहुत कम है, ভয়েসটা কেটে যাচ্ছে ম্যাম। হ্যালো
হ্যালো, শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ ম্যাম। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, কেটে গেছে। See, as I said, transmission, conveyance losses and efficiencies are indirectly proportional. Am I audible? Yes ma'am. Okay, see, more the efficiency, okay, means less will be your losses, right? अगर loss कम होगा तभी तो हम बोलेंगे अच्छा ये बहुत efficient है, right? तो वैसे, so transmission loss कैसे होगा? See, this is your river and this is your canal. ठीक है, आप वाटर को ट्रांसमिट करना है, राइट? रिवर से तो डायरेक्ट जंप करके तो नहीं जाएगा, इट विल गो थ्रू सम चैनल्स, राइट? इन दोनों के बीच में भी कुछ कनेक्टिविटी रहेगा. सो while transmitting, right, while transferring from river to canal, there will be some losses. जैसे कि यहाँ से अगर 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज आया है और लेकिन कैनल में जाते जाते कितना डिस्चार्ज हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. देन व्हाट इज द WCE वैल्यू? देन वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी कितना होना चाहिए? 1/2 into 100. यस, मतलब कितना यहाँ पे हुआ और ऑलरेडी कितना था, राइट? सो देखो 50%, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना है? 50%, राइट? मतलब 1/2 into 100 अगर कर दोगे तो 50%, मतलब कि इसका जितना कैपेसिटी था उससे सिर्फ उसका हाफ ही यहाँ पे आएगा. सो दैट इज योर वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी. नाउ व्हाट इज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी? अच्छा, ये तो बोल सकते हो, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या लग रहा है, क्या है? नाम से तो पता चल रहा है. सी, इन द नेम इटसेल्फ, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी. बोलो কি মনে হচ্ছে? अच्छा बोलो तो, शुभजीत विश्वास বা ইপসিতা মাঝি बोलो. अरे सुनते पाচ্ছ কি পাচ্ছ না গো? পাচ্ছি ম্যাম. Then tell me water application efficiency, what do you understand by this? ये किसका? মানে हाँ बोलो. যতটা ডেলিভার করা হলো আর কতটা মানে ট্রিট মানে এটা প্ল্যানটা পেলো তার एग्जैक्टली वेरी गुड. मतलब क्या है? It is root zone held water, मतलब the water held by the root zone versus what water that we have applied, right? मतलब कि रूट जोन में कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ या हेल्ड हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल हम कितना अप्लाई किए, राइट? सपोज एज एक एग्जांपल हम ऑलरेडी बोले थे कि तुम ऐसे डाल रहे हो पानी, इसमें से कुछ रूट जोन एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन इतना पानी मैम. WAE कितना होगा? WAE will be your 50%. मतलब कि क्या है? रूट जोन इतना ले सकता है, राइट? मतलब वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इतना है और यू हैव अप्लाइड दिस मच. देन एफिशिएंट कितना है? मतलब कितना एफिशिएंट है? अगर 100 तुम पानी दे रहे हो, वो 100 ही ले लेता तो क्या होता है? वो तुम्हारा इट विल बी 100% एफिशिएंसी, राइट? लेकिन तुम दे रहे हो 100 लेकिन वो ले रहा है कितना? 50. सो एफिशिएंट कितना है इसका? एप्लीकेशन जो हम पानी डाल रहे जिस तरीके से या वी आर व्हाटएवर मेथड दैट वी आर यूजिंग, उससे पानी जितना अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ले रहा है उससे आधा. सो उसका एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड. ओके, सो WAE इज योर 50% इन दिस एग्जांपल. सिमिलरली वाटर स्टोरेज क्या है? ये देखो, एक है कि हेल्ड है, एक है तुम्हारा स्टोर्ड, मतलब दोनों सेम ही है, राइट? एक दूसरा क्या बोला है? वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन वर्सेस वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट इन
filled capacity. ओके, कोई बोल सकता है filled capacity क्या था? filled capacity क्या है ये पहले बोलो। ये क्या अमाउंट ऑफ वाटर है ना कि वाटर कंटेंट है? filled capacity वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, राइट, मतलब सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट, राइट। तो और फिल कैपेसिटी में कितना क्या क्या वाटर टाइप ऑफ वाटर जनरली होता है फिल कैपेसिटी में, उस पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट में, मतलब सॉइल का एक मॉइस्चर कंटेंट है सपोज, दैट इज फिल कैपेसिटी। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मतलब क्या क्या वाटर टाइप्स को मिलाकर फिल कैपेसिटी बनता है? मैम कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक Yes, वाटर very और ग्रेविटी वाटर। ना ग्रेविटी को डिडक्ट करके जो वाटर रह जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट इज फिल कैपेसिटी। ओके, मतलब फिल कैपेसिटी में जनरली रहता क्या क्या, एक है कैपिलरी वाटर और एक है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ओके, क्लियर? Yes, वेरी ma'am. गुड। तो जितना पानी चाहिए फिल कैपेसिटी को रीच करने के लिए, उस मॉइस्चर कंटेंट को रीच करने के लिए, ठीक है, और जो वाटर विच इज हेल्ड बाय द रूट जोन, उनका रेशियो विल बी योर वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। नाउ लेट अस डू वन प्रॉब्लम जिससे और इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, क्लियर होगा और कंसेप्ट। अब ये थोड़ा तुम लोग खुद करके देखो, इतना कुछ आइडिया वाइडिया सब आ गया, अब खुद करके देखो ये। ओके, क्वेश्चन क्या है? अ फील्ड मेजर्स 40 हेक्टेयर्स, ठीक है, तुम्हारा एरिया कितना दिया है? 40 हेक्टेयर्स। व्हेन 8 क्यूमेक्स ऑफ वाटर वाज सप्लाइड फॉर 6 आवर्स, मतलब जब तुम 8 क्यूमेक का पानी डाल रहे हो कंटिन्यूसली फॉर 6 आवर्स, कितना पानी वो एब्जॉर्ब कर रहा है रूट, या कितना पानी वो हेल्ड या स्टोर कर रहा है रूट? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 30 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर वाज स्टोर्ड इन द रूट जोन। देन द फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी, दिस इज नथिंग बट द WAE, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जो हम ये बोले थे, ये वाला, ठीक है, कितना रूट जोन हेल्ड कर रहा है और कितना तुम डाल रहे हो, दोनों का रेशियो। ओके, सो यही पूछा है, फाइंड द फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से? 70%, 80%, 85 या 90%, ठीक है। लेट अस सी व्हाट आर द गिवन डाटा। गिवन बोल दिया है एरिया इतना हेक्टेयर्स है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 8 क्यूमेक्स ऑफ वाटर है तुम्हारा 8 क्यूमेक्स ऑफ वाटर वाज सप्लाइड फॉर 6 आवर्स। ओके, और उसकी वजह से कितना वाटर वो स्टोर हो जा रहा है रूट में? 30 सेंटीमीटर। ओके, मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमको? फर्स्ट ये कैलकुलेट करना है। देखो, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? कितना पानी रूट जोन में है वो चाहिए, विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, और दूसरा क्या चाहिए? कितना पानी तुम अप्लाई करोगे। सो वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मच वाटर इज टू बी अप्लाइड। ओके, यहाँ पे हाउ मच का मतलब है डेप्थ, ये सिंस इट इज इन डेप्थ तो ये डेप्थ हो जाएगा। रेशियो विल बी वाटर जोन में, रूट जोन में कितना वाटर है इन डेप्थ और कितना डेप्थ ऑफ वाटर हम अप्लाई किए। ओके, दोनों का रेशियो वी विल गिव यू दिस फॉर्मूला। ओके, तो 30 सेंटीमीटर था तुम्हारा क्या रूट जोन एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ही डालेंगे, राइट, पानी ज्यादा ही अप्लाई करेंगे, तो वो डेप्थ पहले निकालो। तो ये डेप्थ निकाला, ये वाला दिया है, तो दिस बाय दिस करोगे, वी विल गेट द एफिशिएंसी। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। मैम 70। What about the others? After the class, you have to submit this class work. Okay, दे देना है। और 23 जन जितने जन हो अटेंडेंस मस्ट है, और तो सबका 23 जन जितने जन हो उनका तो क्लास वर्क भी मस्ट ही है। मतलब यहाँ पे आके बैठे रहोगे ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तुम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। देखो मैम 69.4% में तो ম্যাম আমার 69.5 এসছে। তো ওইটাই ম্যাম 69 70 করে দিয়েছি, 70 করে দিয়েছি। हाँ, तो उसको 70 कर सकते हो। शुभजीत दत्तो बोलो, कैलकुलेट करो, बोलो हमके
এক দুজনই শুধু রেসপন্স করে কেন গো? এ চ্যাটে লেখো, যারা বলতে পারছো না চ্যাটে লেখো। অরিন্দম মৌরি আছো? নেই। এখানে প্রেজেন্ট থেকে চলে যাও নাকি? পৃথা, হ্যালো। 70। হ্যাঁ ম্যাম আছি তো। হ্যাঁ বললো, তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি না আজকে আমি। না না ম্যাম, আসলে আমার হেডফোনটা একটু প্রবলেম করছে ও তার আচ্ছা জন্য। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। 24 জন কারা আছে দেখি ওখানে মেল করে। বলো অরিন্দম, ইয়েস ম্যাম বললে তো হবে না, আমি কি কোশ্চেন করেছি? আজকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে ছেড়ে তো দেবো তোমাদেরকে, বলো একটু অঙ্কগুলো করো। করছো? আচ্ছা, ভেরি গুড। ইপসিতা, কৌশিক, কুন্তি, মান্না, কৌশিক মান্নাও আছো তো? হ্যাঁ ম্যাম 70 আসছে, একটু কম আসছিল, ওটা আর কি অ্যাপ্রক্স করে 70। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। বাকিদের রণজয়, সমীর, 23 জন। বাকিরা ক্লাসই অ্যাটেন্ড করেন কেন? So let us see. ये सब दिया है, ठीक है। सिंपल यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड। एक क्यूब में डिस्चार्ज कितना दे रहा है 6 आवर्स के लिए, मतलब एक क्यूब में के लिए कितना हो कैलकुलेट कर लो, राइट। तो इतना पानी, वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल बी अप्लाइड इफ वी इरिगेट फॉर दिस मच डिस्चार्ज फॉर 6 आवर्स, इतना होगा। तो यूनिटरी मेथड में अगर हम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? तो डेप्थ क्या हो जाएगा? डेप्थ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। सो दिस इज योर एरिया, दिस इज योर वॉल्यूम। एरिया कितना है? इतना बोला है, तो कितना पानी दे रहे हैं हम लोग फॉर 1 क्यूमेक, इतना पानी डेप्थ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो 8 क्यूमेक के लिए कितना अप्लाई करेंगे? इतना, राइट। तो विच इज कमिंग आउट टू बी 43.2, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो था, दिस वैल्यू इज 43.2। तुम्हारा रूट जोन में कितना है? 30 है, ठीक है। सो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज हेल्ड बाय द रूट जोन बाय वाटर अप्लाइड डेप्थ में, ठीक है। 30/43 coming out to be this much. সবার কি এসেছে এটা? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, তোমরা কি এই মেথডে করেছো নাকি ওই যে 8.64 দিয়ে করেছো? এইটাই ম্যাম। ম্যাম এইভাবেই করেছি। এভাবে করেছো? ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য फॉर टुडे दिस मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, ओके, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एंड ऑल, और थोड़ा और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डेल्टा ड्यूटी बेस के हिसाब से। ओके देन आज इतना ही करो, तो लीव कर सकते हो तुम लोग, ओके। बाकीদের you, কি? ma'am. বাকিদের কি? हाँ वेलकम। जाके अटेंडेंस दे देना, ओके। ओके मैम। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू मैम। থ্যাংক ইউ ম্যাম।